Hi everyone, very good evening. This is Simran Kaur from HR department. I welcome all of you to this amazing webinar, Street Experts Mastering the Basics of Option Trading, Part 1. So speakers for today's webinar is Mr. Vishnukant Upadhyay, working with us as Assistant Vice President in Advisory and Research Department based at Delhi office. So we will have a Q&A session at the end of the presentation. So if any of the participants have any query, can write it down in the Q&A box or can raise their hand for the query and we will allow them to speak. So now I would like to hand over the call to Mr. Vishnukant Upadhyay. Thank you. Thank you, Simran. Thank you very much. Good afternoon, everyone, and welcome to this Street Expert Mastering the Basics of Option Trading webinar. So guys, in today's webinar, we will delve into the core concept of option trading that will help you to decode the complex nature of options. So let's start the presentation. So guys, the topics we are going to cover in this webinar is what are the options, type of options, options terminologies, advantage of trading in options, basic option strategies, option chain analysis, PCR ratio analysis, what is the implied volatility, and special bonus to attend this webinar, intraday trade setup for beginners. So before starting and jumping to what are the options, I would like to tell you one example that you are planning to suppose that you are planning to buy a property and you go to a property agent. You ask him to show some property which is which has a worth around 50 lakh. So property agent show you a property worth 50 lakh and says you that, sir, this property is very good because a commercial plaza is scheduled to build in the proximity of this area. If this happens, the prices of this property will definitely increase to around 60 lakh. So this is very a good opportunity you feel in yourself. So what you do? You do, after giving a registration fees of 50,000, you lock the deal, right? Now, after the completion of 2 years, there is two scenarios. First is, there is a plaza and the rate of property approaches to 60 lakh. Then you will earn a profit of 10 lakh minus the premium you paid on that, like registration fees of 50,000. So the net profit of your 9,50,000. The second scenario says, if यदि कोई वहां पे प्लाजा नहीं बनता है तो प्रॉपर्टी की रेट क्या बढ़ेंगे? डेफिनेटली नॉट बढ़ेंगे. परहैप्स द प्रॉपर्टी रेट विल डिक्रीज. तो लेट्स एज्यूम प्रॉपर्टी की रेट जो है वो 45 लाख के आसपास आ जाते हैं, यानी कि देयर विल बी अ डिक्रीज ऑफ 5 लाख फ्रॉम द करंट रेट जो कि 50 लाख थे आज से 2 साल पहले. तो विल यू बाय दैट प्रॉपर्टी? डेफिनेटली नॉट. यू आर नॉट गोइंग टू बाय दैट प्रॉपर्टी बिकॉज you can directly buy that property from the direct market at a rate of 45 lakh, right? So what is your net loss? Your net loss is your registration fees, what you have paid as option premium. So this concept also play in options. So basically guys, in daily life we play in options, but जहां भी एक finance का word use होता है तो हम उसको financial options कहते हैं. So let's move to what are the options. So guys, options are the financial instruments that grant the holder the right but not the obligation to buy or sell an underlying asset such as stocks भी हो सकता है, कोई commodity भी हो सकती है, कोई currency भी हो सकती है और indices भी हो सकती है at a predetermined price जिसको कि हम एक strike price बोलते हैं और on before the specified price date, that is a expiration date. So basically there are two types of options. एक होता है call option, second होता है put options. So guys, in call options gives you right but not the obligation to buy the underlying asset on or before the expiry date. In opposite to call option, there is a put option which gives you right to sell the underlying asset before or on the expiry date. तो कॉल ऑप्शन के केस में जैसे कि हमने ये प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल लिया था, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉल ऑप्शंस, क्योंकि आपने एक रजिस्ट्रेशन फीस पे करके एक राइट को बाय किया था कि आफ्टर 2 इयर्स यदि प्रॉपर्टी की रेट 60 लाख के आसपास होते हैं तो आई विल बाय दैट प्रॉपर्टी
और आई विल नॉट बाय दैट प्रॉपर्टी इफ रेट नॉट इंक्रीज। तो उस केस में आपका जो लॉस था दैट वाज लिमिटेड टू द रजिस्ट्रेशन फीस दैट यू हैव पेड। पुट ऑप्शंस क्या होता है, आपको पुट ऑप्शंस में एक राइट मिलता है किसी प्रॉपर्टी को या किसी भी असेट को सेल करने का। तो यहां भी आपके पास ऑब्लिगेशन नहीं है बट राइट है। तो पुट ऑप्शन का एक एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे कि आप सभी के पास मोटर व्हीकल्स होंगी, 4 व्हीलर्स होंगे, 2 व्हीलर्स होंगे, तो यू डेफिनेटली यू बाय इंश्योरेंस ऑन दैट। तो अनफॉर्चुनेटली यू मेट विद एन एक्सीडेंट। तो आपने जो इंश्योरेंस थी, आपकी जो इंश्योरेंस की जो 4 व्हीलर की जो इंश्योरेंस वैल्यू थी वो 10,000 में आपने प्रीमियम पे किया था और उसकी जो आईडीवी वैल्यू थी दैट वाज 5 लाख। तो जब आपका एक्सीडेंट होता है गाड़ी का, तो वो गाड़ी एक तरीके से कंडम हो जाती है, जंक हो जाती है। तो यदि आप किसी कंडम जंक को, स्क्रैप को मार्केट में सेल करने जाओगे तो आई थिंक दैट विल नॉट सेल मोर देन 50,000। तो 5 लाख की वैल्यू आपको 50,000 में मार्केट में मिलेगी, तो आपको लॉस कितना हुआ? 4.5 लाख का आपको लॉस होता है। बट सडनली आप रिमाइंड करते हैं कि आपने तो इसका इंश्योरेंस करा रखा है, आप एक इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि आई विल एक्सरसाइज माई राइट। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको या तो आपकी गाड़ी ठीक कराती है, आपको 5 लाख रुपए देती है। तो इस केस में आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 4.5 लाख का हुआ, क्योंकि आप यदि उस गाड़ी को मार्केट में सेल करने के लिए जाते हैं तो वो गाड़ी आपकी 50,000 रुपए में सेल होती और यहाँ इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 5 लाख रुपए दिए। तो ये जो है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ पुट ऑप्शन, बिकॉज इन दिस ऑप्शन you just buy the right to sell the underlying asset. Styles of options. So basically guys, there is a 2 styles of option. पहला है American options and second है European options. तो American options क्या होता है? In American options you have right to exercise your right before the expiry date, right? क्योंकि हर एक कॉन्ट्रैक्ट में एक मैच्योरिटी डेट होती है, एक एक्सपायरी डेट होती है, और जब भी आप कहीं जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन भी किसी चीज का कराते हैं तो एक पर्टिकुलर डेट होती है कि उस डेट से पहले आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अमेरिकन ऑप्शंस में क्या होता है कि आप अपने राइट को कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं बिफोर एक्सपायरी डेट। बट अपोजिट टू अमेरिकन ऑप्शन देयर इज अनदर काइंड ऑफ ऑप्शंस, दैट इज अ यूरोपियन ऑप्शंस। इन इंडिया बेसिकली हम यूरोपियन ऑप्शंस में ही प्ले करते हैं। यूरोपियन ऑप्शंस डज नॉट गिव यू एनी राइट टू एक्सरसाइज the underlying asset before the expiry date. एक्सपायरी डेट से पहले आप जो है यूरोपियन ऑप्शंस में किसी भी चीज को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। नाउ द वन क्वेश्चन इज कमिंग इनटू योर माइंड दैट कि हम तो एक्सपायरी डेट से पहले प्रीमियम पे सेटलमेंट करते थे। तो गाइज दैट इज नॉट एक्सरसाइज ऑफ योर राइट। एक्सरसाइज ऑफ योर राइट क्या होता है कि जब आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को यानी कि अंडरलाइन को अपने स्पॉट प्राइस के कंपैरिजन में जब एक्सरसाइज करते हैं तो उसको बोलते हैं दैट इज द एक्सरसाइज ऑफ योर राइट। बट जब आप किसी चीज को ऑप्शन के प्रीमियम पे सेटलमेंट करते हैं, दिस इज नॉट द एक्सरसाइज। यदि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायरी तक लेके जाते हैं और स्पॉट वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका जो सेटलमेंट होता तो उसको आप कह सकते थे दैट इज द एक्सरसाइज ऑफ योर राइट। बट यूरोपियन केस में, बट इस केस में जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो अपनी पोजिशंस को ऑप्शन के प्रीमियम पे सेटलमेंट करते हैं। सो दिस इज नॉट एक्सरसाइज। Moving to next slide. Now there are the option terminologies. So we just took down the key option terminologies. First is strike price, second spot price, underlying assets क्या होता है, expiration date क्या होती है, option premium, intrinsic value and time value. तो strike price is a price at which underlying can be bought or sold. तो जैसे कि हमने एक फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया था प्रॉपर्टी वाला, यू आर एक्सपेक्टिंग द प्रॉपर्टी टू राइज एट 60 लाख। तो उस केस में यदि प्रॉपर्टी का जो रेट था 60 लाख यदि नहीं पहुंचता तो आप उसको एक्सरसाइज नहीं करते। तो उस केस में जो 60 लाख है दैट इज स्ट्राइक प्राइस। स्पॉट प्राइस 50 लाख जो कि करंट मार्केट प्राइस होता है, तो उस प्रॉपर्टी का जो करंट मार्केट प्राइस था दैट वाज 50 लाख। तो इस केस में स्पॉट प्राइस क्या हुआ आपका 50 लाख। व्हाट इज द अंडरलाइंग असेट? इन दैट केस अंडरलाइंग असेट इज अ प्रॉपर्टी जिसको कि आप बाय करने जा रहे थे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात करें तो आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी पर ट्रेड करते हैं, तो इन दैट केस दीज कुड बी अ अंडरलाइंग असेट्स। एक्सपायरी डेट क्या होती है? एक्सपायरी डेट इज अ डेट एट विच यू आर प्लानिंग टू एक्सरसाइज योर कॉन्ट्रैक्ट।
जैसे कि प्रॉपर्टी के केस में आप 2 साल बाद यदि उस प्रॉपर्टी को खरीदने का प्लान कर रहे थे तो एक्सपायरी जो डेट थी वो 2 साल बाद की थी। बेसिकली इन इंडिया व्हेन वी ट्रेड इन ऑप्शंस, सो ऑप्शंस की जो एक्सपायरी होती है वो वीकली एक्सपायरी भी होती है और मंथली एक्सपायरी भी होती है। तो वीकली एक्सपायरी जो एवरी थर्सडे ऑफ द वीक इज अ वीकली एक्सपायरी, एवरी लास्ट थर्सडे ऑफ द वीक इज अ मंथली एक्सपायरी एज ऑफ नाउ। नाउ व्हाट इज द ऑप्शन प्रीमियम? So guys, option premium basically a value that you pay to buy your right. तो जब भी आप कोई अपना अधिकार खरीदते हैं तो उसके लिए आपको एक पेमेंट करना होता है। जैसे कि आपने प्रॉपर्टी के केस में 50,000 रुपए देकर अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। यदि प्रॉपर्टी के रेट इंक्रीज होते तो आप उसको एक्सरसाइज करते, यदि प्रॉपर्टी के रेट इंक्रीज नहीं होते तो आप उस अपने ऑप्शंस को एक्सरसाइज नहीं करते। तो उस केस में हम ऑप्शन प्रीमियम को कंसिडर करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन फीस। So similarly, whenever you buy option, you have to pay a certain amount. That is the option premium. So basically, option premium consists two things. One is intrinsic value, second is time value. So guys, intrinsic value basically क्या होती है? Intrinsic value is nothing but it is the actual current value of the option contract. For example, आप इसको ऐसे भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि this is the difference between the strike price and spot price in the case of call options. कि let's say Nifty is currently trading at 20,000 and if you buy call option for 150 rupees, 150 का आप कॉल ऑप्शन बाय करते हैं 19,900 की स्ट्राइक का, तो आपका इस केस में जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी दैट विल बी 100 रुपीज। द डिफरेंस बिटवीन स्पॉट प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस, इस केस में आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हुई? 100 रुपीज। बट आपने ऑप्शन प्रीमियम कितना पे किया हुआ है? 150 रुपए का। तो जो आपने 50 रुपए एक्स्ट्रा पे किए हुए हैं ओवर इंट्रिंसिक वैल्यू, दैट इज योर टाइम वैल्यू। So guys, what is the advantage of trading in options? So basically from the buyer point of the view, there is a limited risk and unlimited potential gain. Yes, definitely जो आप ऑप्शन प्रीमियम पे करते हैं दैट इज योर लिमिटेड रिस्क एंड मार्केट। यदि आप कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो मार्केट जितना ऊपर जाता है आपको उतना ही प्रॉफिट होता है, बट आपके जो लॉसेस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, जो प्रीमियम आपने पे कर रखा होता है उतना ही। लीवरेज मिलती है आपको। फॉर एग्जाम्पल के लिए यू आर बुलिश ऑन रिलायंस, आपको लगता है कि रिलायंस के प्राइस करंटली 2000 रुपए के आसपास है। इफ यू आर थिंकिंग दैट प्राइसेस कैन अप्रोच टुवर्ड्स 2100, राइट, बट you have a tiny of amount, like very बहुत ही कम अमाउंट है आपके पास, let's say 10,000 के आसपास का, and you just want to buy a future of the Reliance, बट जैसा कि आप जानते हैं कि फ्यूचर के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है 1.25 या 1.30 लाख के आसपास की। सो यू आर थिंकिंग यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द राइज ऑफ रिलायंस शेयर प्राइस। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको लगता है कि रिलायंस के प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएंगे तो आप रिलायंस की एक ऑप्शन की कॉल बाय कर सकते हैं, एंड दैट कॉल विल ओनली कॉस्ट यू अराउंड 2000 और 3000। तो यहाँ पे आपको एक हाई लीवरेज मिलता है। 2 से 3 हजार रुपए में आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। 1.5 लाख रुपए तक की जो मार्जिन जहां रिक्वायरमेंट होती है आप उसको 2 या 3 हजार रुपए में फुलफिल कर सकते हैं। तीसरा बेनिफिट है हैजिंग का। तो गाइज बेसिकली ऑप्शंस का जो इवॉल्वमेंट हुआ था वो हैजिंग को लेकर ही हुआ था कि आपके पास कोई असेट्स है और आपको लगता है कि द वैल्यू ऑफ दैट असेट्स कुड ड्रॉप इन नियर टर्म, तो आप कोई कॉल ऑप्शन बाय करते थे, तो इससे आपको होता था कि आपके असेट्स की आपको एक हैजिंग मिलती थी। तो आप कॉल ऑप्शन से हैजिंग भी कर सकते हो। लाइक यहाँ काफी सारी स्ट्रैटेजीज होती है, जैसे कि प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रैटेजी होती है। आपके पास आपने कैश मार्केट में रिलायंस के शेयर बाय किए हुए हैं और कल फॉर एग्जाम्पल हम इन्फोसिस का एग्जाम्पल लेते हैं, तो आपने इन्फोसिस के जो है वो शेयर बाय किए होते हैं और लेट से कल इन्फोसिस का क्वार्टरली रिजल्ट आना होता है, तो पास्ट की हिस्ट्री को एनालाइज करके आपको लगता है कि कल इन्फोसिस के शेयर में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है, बिकॉज इन लास्ट few sessions we have seen a tremendous fall in the share prices. So considering this view, you buy a put option. अब प्राइसेस यदि इन्फोसिस का नीचे जाता है तो आपने अपने डाउनफॉल को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, क्योंकि आपने पुट ऑप्शन बाय किया हुआ है। प्राइसेस नीचे जाएगा तो आपको पुट ऑप्शन से फायदा हो जाएगा। इफ प्राइसेस डज नॉट फॉल, प्राइसेस ऊपर जाना स्टार्ट करता है, तो आपका जो पुट ऑप्शन जो आपने बाय किया है उससे जो लॉस होगा वो लिमिटेड है, जो कि आपने प्रीमियम पे किया हुआ है। तो आपको ऑप्शन में ट्रेड करने से एक हेजिंग मिलती है।
Fourth point है income generation. So guys, there are so many option strategies, like we will discuss in in upcoming webinars when we discuss the advanced option strategies. So there are many income generation strategy like Strangle, Iron Condor, covered call. By adopting these strategies, you can generate a steady and consistent income. Fifth point है flexibility का. So guys, options gives you an opportunity to trade any scenario of the market, whether market is bullish, bearish or sideways. Guys, bullish market में तो हर कोई पैसा कमाता है. क्या आप sideways market में पैसा कमा सकते हैं? Yes. By trading in option, you can earn money in a sideways market because there are strategies like Strangle. So by trading in such kind of strategy, you can make money in sideways market also. लो कैपिटल रिक्वायरमेंट, जैसे कि हमने पहले भी बताया आपको कि इसमें एक आपको ऑप्शन प्रीमियम देना पड़ता है, और जो ऑप्शन प्रीमियम आपको देना पड़ता है वही आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट. मूविंग अहेड, द नेक्स्ट टॉपिक इज मनीनेस ऑफ ऑप्शन. So basically, moneyness of option refers to the relationship between the current price of the underlying asset and the strike price of the option. Moneyness is basically categorized into three parts. First, in the money, at the money और आउट ऑफ द मनी. तो मैं एक एग्जांपल के साथ इसको समझाना चाहूंगा. बेसिकली इन द मनी स्ट्राइक ऑप्शंस क्या होते हैं? इन द मनी स्ट्राइक ऑप्शंस क्या होते हैं? व्हेनेवर स्ट्राइक प्राइस, इन द केस ऑफ कॉल ऑप्शंस, व्हेनेवर स्ट्राइक प्राइस is less than spot price, so that strike is considered as a in the money. For example, Nifty is currently trading at 20,000, and if you buy a strike price of 90,900, so in this case 19,900 की जो कॉल है, this is in the money by 100 points. 100 रुपए से in the money है. If you buy a strike price of 20,000, this is at the money. जो मार्केट में करंट रेट अभी चल रहा होता है, आप सिमिलर उसी की स्ट्राइक प्राइस बाय करते हैं, तो उसको हम एट द मनी बोलते हैं. थर्ड मनीनेस होता है आउट ऑफ द मनी. तो आउट ऑफ द मनी शो करती है कि प्राइसेस कितने एक्स्ट्रा अमाउंट से बाहर है. लाइक निफ्टी इज करंटली ट्रेडिंग एट 20,000, एंड इफ यू बाय कॉल ऑप्शन ऑफ 20,100, सो दिस इज आउट ऑफ द मनी बिकॉज द स्ट्राइक इज आउट बाय 100% फ्रॉम द स्पॉट प्राइस. ओके, नाउ गाइस, there are some basic option strategies. Long call, long put. So yes, so there are some basic option strategies. Long call, long put. So long call, this is also a plain vanilla options. तो आप call buying करते हैं, put buying करते हैं. Whenever you are bullish on the market, you buy call options because call options gives you right to buy the underlying asset. जैसे कि if you are thinking that Nifty prices can approach towards 20,200 or 20,300, so you in that scenario you can buy the call options of 20,200 or 20,100, whatever strike you like. So that we will discuss whenever you are buyer of the options. So क्या क्या चीजें हैं जो कि आपको अपने माइंड में रखनी होती है. But here we are just giving an example. तो आप जब भी मार्केट में बुलिश होते हैं तो आप कॉल ऑप्शंस को बाय करते हैं, and whenever you are bearish on the market, you buy the put options, because by giving a put some premium, you just going to make a huge money if prices goes down. So these are the payoff diagrams of call options and put options. So here you can also witness that downfall in the long call is a limited, while upsurge is unlimited. Prices going up, you are making a lot of money in the long put diagram. Downside is also limited. Prices falls, you are making a lot. The next basic option strategy is covered call. Covered call is basic income generating strategy. So in this strategy, trader own the underlying asset and simultaneously sell call options against it. So this strategy generates income through the premium received from the selling the call options. जैसे कि हमने आपको इन्फोसिस का एग्जांपल दिया था कि whenever you are आउटलुक जो है आपका न्यूट्रल टू बुलिश है, तो आप मार्केट में एक कवर्ड कॉल की स्ट्रेटेजी को प्ले कर सकते हैं. ब्रेक इवन जो पॉइंट रहता है कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी में, वो आपका जो परचेजिंग प्राइस ऑफ द स्टॉक्स माइनस प्रीमियम रिसीव रहता है. एक ड्रॉबैक है इस स्ट्रेटेजी का, एंड द ड्रॉबैक इज द अपॉर्चुनिटी रिस्क ऑफ नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द स्टॉक प्राइस. तो गाइज, जैसे कि हमने एक इन्फोसिस का एग्जांपल दिया था आपको कि आपको लगता है कि कल इन्फोसिस के रिजल्ट आने हैं एंड प्राइसेस
आफ्टर डिक्लेयरिंग द रिजल्ट्स प्राइसेस कैन टॉपल, तो आप एक कवर्ड कॉल, आप एक कॉल ऑप्शंस को बाइंग भी कर सकते हैं उस केस में। बेसिकली वो एक प्रोटेक्टिव पुट का ऑप्शन था, बट आपको यदि ऐसा लगता है कि प्राइसेस में एक बहुत ज्यादा डिक्लाइन नहीं देखने को मिलेगा, यू आर जस्ट मॉडरेटली बियरिश ऑन द मार्केट, तो आप उस केस में एक कवर्ड कॉल को भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट आपको लगता है एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर नहीं जाएगा, आपको लगता है कि मार्केट एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर नहीं जाएगा, बिकॉज यू आर न्यूट्रल टू बुलिश ऑन द मार्केट. So I think Infosys example is not a valid in this case. I give you another example. If you are, just you have bought shares of Reliance, and if you are thinking that Reliance is a trading in a band of 2000 to 2200, prices are not, moving up the 2200. So whenever prices comes around 2100, you sell a call option of 2200. So when prices comes down close to 2000, you make a profit of, whatever premium you have earned, because market is trading in a horizontal band. So the next strategy is protective put, जो कि हम इसको हम एक्सप्लेन कर ही चुके हैं इन्फोसिस के एग्जांपल के साथ, कि ये एक बेरिश स्ट्रेटेजी है। जब भी आपको लगता है कि आपकी जो अंडरलाइंग, जो भी आपने शेयर्स बाय कर रखे हैं, आपको लगता है कि वो शेयर्स एक कोई रिजल्ट आने के बाद या फिर कोई न्यूज आने के बाद प्राइसेस में कुछ गिरावट आ सकती है, बट simultaneously you are thinking the stock is fundamentally very right and you are not going to sell that asset, तो आप अपने डाउनफॉल को हैज करने के लिए एक प्रोटेक्टिव पुट को बाइंग करके चल सकते हैं। The next strategy is bull call spread. So guys, this strategy is very good for beginners because this strategy can be adopted in a moderately bullish market. आप इस स्ट्रेटजी में करते क्या है? A bull call spread strategy consists of buying a lower strike call options and simultaneously selling a higher call options. This is a very good strategy for moderately bullish market. तो इस स्ट्रेटजी में आपको जो लॉस होता है that is limited to net debit, क्योंकि आप एक कॉल ऑप्शंस को बाय कर रहे हैं और आप एक कॉल ऑप्शंस को सेल कर रहे हैं, तो इस स्ट्रेटजी में आपको नेट डेबिट देना पड़ता है। इसको हम डेबिट स्ट्रेटजीज भी बोलते हैं। तो आपको जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है इस स्टडी में, जो स्प्रेड है, आपके जो ऑप्शंस का जो स्प्रेड है, लेट से आपने 20,000 की एक निफ्टी की कॉल ऑप्शन बाय की और 20,200 की आपने एक कॉल ऑप्शंस को सेल किया, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि 200 पॉइंट का जो डिफरेंस है और जो आपने नेट डेबिट पे किया हुआ है, दैट विल बी योर मैक्स प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो भी लिमिटेड है और डाउनफॉल जो है वो भी लिमिटेड है। तो जो बिगनर्स हैं मार्केट में, जो नए नए ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनके लिए ये स्ट्रेटेजी इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी। द नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इज bear put spread, similar to bull call spread. Whenever you are thinking that market is looking a moderately bearish, so you can adopt this strategy. In this strategy, you buy a higher strike put options and simultaneously sell a lower strike put options. तो यहाँ भी जो आपका मैक्सिमम जो प्रॉफिट होता है वो लिमिटेड है, मैक्सिमम जो लॉस होता है आपका वो भी लिमिटेड है। तो ये स्ट्रेटेजी भी एक तरीके से देखा जाए तो बिगिनर्स के लिए काफी सूटेबल स्ट्रेटेजी होती है। ब्रेक इवन की हम बात करें तो हायर स्ट्राइक जो होती है उसमें से आप डेबिट को माइनस करते हैं तो वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है। तो एज यू कैन सी ऑन डायग्राम्स, दोनों तरफ आपको दिख रहा है कि आपके जो प्रॉफिट पोटेंशियल्स हैं वो भी लिमिटेड हैं और जो लॉस पोटेंशियल्स हैं इसमें वो भी आपके लिमिटेड है। So guys, basically before adopting any kind of strategies, option strategy, I would like to say that making view on market is a very, very essential. Whenever you are trading options, you have to build your view, your outlook on the market. Without making any view or outlook on the market, you can't trade in the options, you can't make any kind of strategy. Although there are many traders, there are many option traders who do not look at the technicals, who do not look at the chart, they just trade IVs, they just trade open interest only. We will discuss them later. What is the open interest? So guys, basically open interest. So this is the very core concept of the option trading and I want your 100% attention here. So guys, basically open interest is nothing but the total number of outstanding contracts that have not been closed or settled on a particular trading day. It represents the total number of contracts
that are held by the market participant and have not been exercised, expired or fulfilled by the offsetting trade. So basically होता क्या है कि there are two traders, A और B. A B को एक ऑप्शन सेल करता है, तो जब A B को कोई ऑप्शन सेल करता है तो यहाँ पे एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता है. नाउ B क्या करता है, B उस ऑप्शंस को किसी तीसरे आदमी को सेल कर देता है, C को सेल कर देता है. तो उसका B का सेटलमेंट रेट का हो चुका है, बट A का अभी भी सेटलमेंट नहीं हुआ है. तो ओपन इंटरेस्ट यहां अभी भी एक का है, बट ट्रेड यहां दो हुए हैं. पॉइंट टू रिमेंबर, ओपन इंटरेस्ट अभी भी यहां एक का है क्योंकि ए की जो पोजीशन है वो स्टिल अनसेटल्ड, बी ने अपनी पोजीशन को सेटल कर दी है. तो ओपन इंटरेस्ट स्टिल इज इन अ वन लॉट, बट ट्रेड यहां दो हुए हैं, तो वॉल्यूम यहां दो के क्रिएट होगा. तो जब भी आप ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हो तो आप देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट यदि किसी स्ट्राइक में 1 लाख का है तो वहां पे वॉल्यूम जो होते हैं वो 2.5 लाख या 3 लाख के आसपास तक के होते हैं. तो गाइज दिस इज ओपन इंटरेस्ट सेज ओनली अनसेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट जो कि मार्केट में अभी सेटल नहीं हुए हैं. सो दिस इज द ऑप्शन चेन एनालिसिस. So basically guys, this is option chain analysis is the backbone of the option trading. I feel there is a backbone of option trading, option chain analysis and price pattern. There are two things which can be used to become a successful option trader. You should be a good in option chain analysis and price pattern. So option chain analysis में आपको किस चीज को एनालाइज करना है? You have to identify the option volume and open interest. Look for the strike price with the higher trading volume and the open interest. Higher volume and open interest indicate the significant market interest and potential liquidity in those price levels. Second, identifying support and resistance level. So this is a very important point. So basically guys, option chains में normally हम लोग क्या देखते हैं कि कहां पे concentration ज्यादा है, किस strike पे concentration ज्यादा है. For example, Bank Nifty is currently trading at 45,000 and if we see 45,200 पे यानी कि 45,200 पे there is a huge open interest in that particular strike. So we will understand because option chain को जब भी हम एनालाइज करते हैं वो हम ऑप्शन राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ना कि ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से. इसको हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा हम क्यों करते हैं. तो हम ऑप्शन चेन को हमेशा ऑप्शन राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करते हैं. इफ देयर इज अ ह्यूज ओपन इंटरेस्ट राइटिंग एट 45,200 की कॉल, यदि 45,200 की कॉल में यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है तो वी विल अंडरस्टैंड ऑप्शन राइटिंग. कॉल में ऑप्शन राइटिंग कब होती है? whenever you think market will drop, market will go down, so you start writing the calls, right? And whenever you are bullish, you start buying the call. just opposite होता है. तो 45,200 में यदि ऑप्शन राइटिंग एक अच्छे लेवल पे होती है, यू थिंक कि 45,200 का जो लेवल है दैट विल एक्ट एज अ इमीडिएट रेजिस्टेंस. तो जो सेकंड पॉइंट है आइडेंटिफाइंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल सेज ऑप्शन चेन कैन हाईलाइट द पोटेंशियल सपोर्ट and resistance level based on the concentration of the open interest and volume at the specific strike price, जो कि हमने अभी डिस्कस किया. लास्ट पॉइंट है एनालाइजिंग द ऑप्शन स्प्रेड. तो गाइस बेसिकली ऑप्शन चेन को हम अभी यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे. तो थर्ड पॉइंट सेज कि आपको ये भी पॉइंट ध्यान में रखना. बेसिकली इफ यू आर ट्रेडिंग इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, देयर इज नो एज सच लिक्विडिटी क्राइसिस कि ऑलमोस्ट आपको इफ यू आर नॉट गोइंग फार ओटीएम, अब बहुत दूर की ज्यादा कॉल है, पुट एंड राइट नहीं करते हैं, तो आपको जो नियर कॉल्स और पुट राइट्स पुट्स होती हैं उनमें एक अच्छी लिक्विडिटी देखने को मिल जाती है. तो ये थर्ड पॉइंट कहता है कि बिड आस्क का जो रेशियो है, इंपैक्ट कॉस्ट है, दैट शुड नॉट बी वाइडन, बिकॉज यदि वो ज्यादा होगी तो दैट विल शो कि इनलिक्विडिटी है ऑप्शंस में, उस ऑप्शंस में इनलिक्विडिटी है, और आपको किसी भी ऐसे ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना है जहां इनलिक्विडिटी होती है, राइट? So this is a option chain guys, and I have taken this snap from the NSE website. तो आप भी इसको एक्सेस कर सकते हैं. 1 second. तो आप भी इस ऑप्शन चेन को एक्सेस कर सकते हैं. एनएससी की वेबसाइट पे आपको जाना है, गूगल में टाइप करना है एनएससी ऑप्शन चेन, तो आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, किसी की भी आप ऑप्शन चेन को एक्सेस कर सकते हैं.
So guys, here you are seeing that market, for example, when I just take this snap, market was currently trading at 19,600. So there are, 4 points that you have to look at the option chain. One is OI, open interest, right? Second, change in OI. This is very important for intraday trading point of view. Third is volume, and fourth is implied volatility. Right. These 4 things you have to analyze whenever you are analyzing option chain. तो आपको एनालाइज करना है, फॉर एग्जांपल 19,000, अभी ये वाली जो स्ट्राइक है 19,000, आपको देखना है कि उस पे ओपन इंटरेस्ट का कंसंट्रेशन कॉल साइड में, ये जो साइड है दिस इज कॉल साइड, ये जो साइड है दिस इज पुट साइड. राइट साइड में पुट होता है, लेफ्ट साइड में कॉल्स होती है. तो अभी फिलहाल 19,600 पे जो ओपन इंटरेस्ट है दैट इज 97,599. तो आपको ये एनालाइज करना है कि किस स्ट्राइक्स पे सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप है. तो गाइस हियर यू आर सीइंग 2,68,000 का ओपन इंटरेस्ट 19,900 की कॉल पे अभी खड़ा हुआ है. इट मींस इन एनी अपसाइड 19,800 विल एक्ट एज अ इमीडिएट रेजिस्टेंस. बट साइमल्टेनियसली आपको ये भी देखना है कि क्या वॉल्यूम इस स्ट्राइक पे ज्यादा है या नहीं है. यस, वॉल्यूम्स आर आल्सो इंक्रीजिंग एट दिस स्ट्राइक. 11,56,000 के वॉल्यूम इस स्ट्राइक पे हैं. तो गाइस जैसे कि मैंने अपना पिछला जो लास्ट एग्जांपल दिया था उसमें मैंने बताया था कि आपको एक ट्रेड 2 हुआ है, ओपन इंटरेस्ट 1 ट्रेड हुआ है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है बट ओआई इंक्रीज नहीं हो सकता है. तो साइमल्टेनियसली आप यहाँ देखिए कि 2,68,000 का यहाँ ओआई बिल्ड हुआ है बट 11 लाख का वॉल्यूम क्रिएट हुआ है. यानी कि ऑप्शंस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो अनसेटल्ड हैं वो 2,68,000 हैं, बट वॉल्यूम यानी कि एक्सचेंज ऑफ हैंड्स कितना हुआ है 11,56,000. तो आपको ऑप्शन चेंज को जब भी एनालाइज करो आपको यही चीज को इवेल्युएट करना है कि ओआई कहाँ कॉन्सेंट्रेशन किस स्ट्राइक पे ज्यादा है, चेंज इन ओआई कहाँ ज्यादा है, वॉल्यूम कहाँ ज्यादा है, और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आपको क्या शो होती है. राइट. What is the put call ratio? What is the put call ratio? Guys, this is also a very good concept for option trading for intraday. So the put call ratio is the popular sentiment indicator used in the option trading. This is nothing but एक market के sentiment को show करता है. तो put और call ratio basically होता क्या है? Put call ratio is nothing but you can obtain PCR ratio by total open interest of put options divided by total open interest of कॉल ऑप्शंस. तो आप टोटल ओपन इंटरेस्ट ऑफ पुट ऑप्शंस को डिवाइड करते हैं कॉल ऑप्शंस के कॉल ओआई के साथ, ओपन इंटरेस्ट के साथ, तो आपको पीसीआर का रेशियो निकल के आता है. तो जो वैल्यू निकल के आती है दैट विल कम अराउंड एनीथिंग 0.5, 1, 1.2, 1.5, any value can come. So whenever put call ratio is below 1, we can consider market as a bearish trajectory. Whenever PCR ratio is near 1, we can consider market as a neutral, and whenever PCR ratio is above 1, we can consider market as a bullish. Okay guys, so one thing you also keep in mind that here we have written that total open interest of put option divided by total open interest of call options. So to refine the number of PCR ratio, आप क्या कर सकते हैं कि आप जब भी ऑप्शन चेन्स में जाते हैं तो आप जो एटीएम स्ट्राइक होती है उसका 10 स्ट्राइक ऊपर और 10 स्ट्राइक बिलो, यानी कि टोटल 21 स्ट्राइक्स. सिमिलरली इन निफ्टी के केस में और सिमिलरली इन बैंक निफ्टी के केस में आप बेशक सारी स्ट्राइक्स आप अवॉइड करिए लेना, बिकॉज इसका रीजन ये है कि नॉर्मली होता क्या है कि जब बहुत ज्यादा दूर की जो स्ट्राइक्स होती हैं उनमें ऑप्शन जो सेलर्स होता है वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होता है क्योंकि उनके प्रीमियम्स उनको नहीं मिलते हैं. तो बहुत ज्यादा दूर की जो स्ट्राइक प्राइस होती है उनमें ऑप्शंस बायर जो होते हैं, ऑप्शन सेलर जो होते हैं, उन ऑप्शंस को मार्जिन बेनिफिट के लिए बाइंग करते हैं. तो उनमें जो ओआई बिल्ड होता है उनका कोई भी रिलेवेंस नहीं होता है ओआई को एनालाइज करने में. तो जब भी आप पीसीआर रेशियो को एनालाइज करो, मेक श्योर कि आप एटीएम से 10 स्ट्राइक्स ऊपर और 10 स्ट्राइक नीचे
कि आप स्ट्राइक्स लेंगे, चाहे वो बैंक निफ्टी है चाहे वो निफ्टी है, टू मेक द पीसीआर रेशियो मोर एक्यूरेट. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. So guys, there are 5 important factors to become for option buying. तो जैसा कि बिगनर्स के लिए हम ऑप्शन बाइंग ही सजेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज ऑप्शन सेलिंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर बिगनर्स. तो ऑप्शन बाइंग आपको कब करनी है, बिकॉज इन ऑप्शन बाइंग वी हैव टू कीप सम थिंग्स इन द माइंड. एवरी टाइम वी कैन नॉट डू ऑप्शन बाइंग, तो यू हैव टू बी राइट इन द डायरेक्शन. तो ऑप्शन बाइंग जब भी आप करते हैं, आपको एक चीज ध्यान रखना होता है कि आपको अपना डायरेक्शन आउटलुक मार्केट का बहुत ही एक्यूरेट रखना पड़ता है कि मार्केट जो भी आप व्हाट एवर यू आर थिंकिंग ऑन द मार्केट विल बी बुलिश, बियरिश. तो वो जो मूव है बुलिश और बियरिशनेस का, दैट शुड बी अ वेरी वेरी ट्रिमेंडस, बहुत तेजी से होना चाहिए. डोंट फॉरगेट अबाउट द टाइम डिके, बिकॉज इन ऑप्शन बाइंग टाइम वर्क अगेंस्ट द ऑप्शन बाइंग. टाइम वर्क्स always in the favor of option selling but always works against the option buying, because एक थीटा फैक्टर होता है जो कि हम ऑप्शन ग्रीक को जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इन सब सारी चीजों को डिस्कस करेंगे. तो थीटा एक ऑप्शन ग्रीक होता है जो हमेशा ऑप्शन बायर्स के अगेंस्ट में काम करता है. जैसे जैसे ऑप्शन जो है वो एक्सपायरी के पास आता है, हमारा एक सर्टेन अमाउंट जो है वो एरोड होता रहता है, तो हमको हमारे जो ऑप्शंस के प्रीमियम होते हैं वो हमारे मेल्ट होते रहते हैं. तो हमको टाइम डिके का भी ध्यान रखना होता है. Pick an appropriate expiration date. तो लेट्स से एक्सपायरी कल की है, थर्सडे की, आज वेडनेसडे है, तो यू शुड नॉट ट्रेड इन टुमारोज एक्सपायरी. ऑलवेज अवॉइड टू ट्रेड इन द नियर एक्सपायरी डेट. तो बेसिकली बिगिनर्स के लिए हम ऑलवेज सजेस्ट करते हैं कि आप मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करिए, आप वीकली एक्सपायरी में ट्रेड मत करिए, क्योंकि वीकली एक्सपायरी में क्या होता है, ऑप्शंस के प्रीमियम जो है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते, मेल्ट बहुत ज्यादा होते हैं यदि मार्केट में कोई ट्रिमेंडस मूव नहीं आता है. तो फोर्थ पॉइंट है डिटरमाइन द राइट स्ट्राइक सिलेक्शन. गाइस, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट. ऑप्शन बाइंग में आपको कौन सा स्ट्राइक सिलेक्ट करना है, दिस इज अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो देयर आर सो मेनी ऑप्शन ट्रेडर्स हु सजेस्ट कि आपको एटीएम बाय करनी है, आपको ओटीएम बाय करनी है. तो गाइस, व्हेनेवर यू आर ऑप्शन बायर, always try to avoid buying a OTM call options. OTM call options में क्या होता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है. OTM में केवल और केवल टाइम वैल्यू होती है. तो टाइम वैल्यू जब किसी ऑप्शंस में होती है और वो एक्सपायरी के पास पहुंचता है तो उसका इरोजन बहुत सीवियर, बहुत फास्ट होता है. तो आपको यदि ऑप्शंस में बाइंग करनी है तो ऑलवेज गो विद इट इन द मनी. आईटीएम के साथ आपको जाना होगा. आपको ना तो इन द मनी आपको ना तो एटीएम के साथ जाना है और ना ही आपको ओटीएम के साथ जाना है. नाउ द वन क्वेश्चन इज कमिंग इनटू योर माइंड दैट व्हाई नॉट एटीएम, बिकॉज एटीएम हैज हाईएस्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी. आप कभी भी ऑप्शन चेन को एनालाइज करोगे तो आप देखेंगे कि जो एटीएम की जो स्ट्राइक होती है उसमें टाइम वैल्यू सबसे ज्यादा होता है. तो इसलिए एटीएम को आपको अवॉइड करना चाहिए. आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो आप इन द मनी में चाहिए. इवैल्यूएट द इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी. इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आपको देख के चलनी है, कम है, ज्यादा है, कितनी है, क्योंकि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आने वाले रिस्क फैक्टर को आपको बताती है. मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो व्हाट इज द इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी? आईवी क्या होती है? सो बेसिकली आईवी इज अ मेजर ऑफ एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी ऑफ एन अंडरलाइंग असेट ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. एज आईवी इंक्रीज, option price generally rise and vice versa. The reason behind this relationship is that the higher volatility increases the probability of an option moving in the money before the expiry. तो IV जो होती है बेसिकली ये आपको बताती है कि आपकी जो वॉलेटिलिटी है उस पर्टिकुलर स्ट्राइक में कितनी होने वाली है. यदि IV इंक्रीज होती है तो आपके ऑप्शंस के प्राइस इंक्रीज होते हैं. IV यदि डिक्रीज होती है तो ऑप्शन के प्राइस डिक्रीज होते हैं. तो जब भी आप ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन सेलर्स हैं, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना होता है कि आईबी अभी फिलहाल क्या चल रही है. आईबी ज्यादा होती है तो आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है, आईबी कम होती है तो वहां आपको ऑप्शन बाइंग करनी है. तो हाउ कैन यू ट्रेड द इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी? आइडेंटिफाई द ओवरवैल्यूड और अंडर वैल्यूड ऑप्शंस. तो जैसा कि हमने बताया है कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के आईबी के थ्रू आप ऑप्शंस कितना ओवर वैल्यूड है और कितना अंडर वैल्यूड है आप उसको पता करके चल सकते हैं. Basically, guys, there is no as such extreme points. But we consider IB around 50 or nearby 50 considered
as a overvalued or IB below 20 considered as a undervalued. तो IB यदि 50 के आसपास है तो आप ऑप्शन सेलिंग प्रेफर कर सकते हैं। आप कोई ऐसी ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी बना के चल सकते हैं जहां आपको प्रीमियम रिसीव होता है। और IB यदि 20 के आसपास है तो आपको कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है जो कि आपको प्रीमियम पे करता है, बट आपको कि देखिए ऑप्शन बायर यदि आप हैं तो डेफिनेटली यू आर पेइंग द प्रीमियम। आप प्रीमियम जो पे कर रहे हैं दैट इज नॉट अ रिकवरेबल, दैट इज नॉट अ रिटर्नेबल, आपका वो कॉस्ट है। तो आप कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो आप ये श्योर करते हैं कि आपकी कॉस्टिंग जो है वो कम होनी चाहिए। तो जब भी आईबी कम होती है, ऑप्शंस की प्रीमियम्स बहुत कम होते हैं, तो आईबी जो लो सिनेरियो होता है उसमें ऑप्शन सेलर बायर जो होते हैं वो काफी एक्टिव रहते हैं। ऑप्शन प्रीमियम, सेकंड पॉइंट, ऑप्शन प्रीमियम इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी डायरेक्टली अफेक्ट द ऑप्शन प्रीमियम, ट्रेडर सीकिंग टू बाय ऑप्शन प्रीमियम। वही पॉइंट जो हमने अभी डिस्कस किया था कि आईबी लो होती है तो आपको ऑप्शंस बाय करना है, आईबी यदि हाई होती है तो आपको प्रीमियम को सेल करना है। सो गाइस बेसिकली देयर आर वन काइंड ऑफ ट्रेडर इन द मार्केट, कि जैसे कि मैंने बताया कि कोई होता है प्राइस एक्शन को ट्रेड करता है, कोई होता है कि वो खाली ऑप्शन चेन को ही ट्रेड करता है, और देयर आर फ्यू ऑप्शन ट्रेडर हु ओनली ट्रेड आईवीज। वो ऑप्शन की प्रीमियम पे ध्यान नहीं देते, वो देखते हैं कि उस पर्टिकुलर स्ट्राइक की आईवी क्या है। तो वो डेली ट्रैक करते हैं आईवी को, और डेली ट्रैक करके वो अपना एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं कि ये जो एटीएम है, whenever the IB of this ATM approaches close to 35 or 40, market starts falling. Or whenever the IB of this particular strike approaches close to 20 or below the 20, the premium of that particular strike starts to rise. तो वो केवल और केवल आईबी को ट्रैक करते हैं कि आईबी ज्यादा हो जाती है तो उनको सेल करना है, आईबी कम हो जाती है तो उनको बाय करना है, उनको ऑप्शन प्रीमियम को ध्यान नहीं देना होता है। The next slide says, okay, so guys, basically, you can also manage your risk by, by imply the IB in the option trading, क्योंकि जब भी IB जब इंक्रीज होती है तो आपको एक सेंस मार्केट में मिल जाता है कि IB यदि किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक की हाई है, एटीएम की हाई है, तो आपको एक सेंस मार्केट में मिलता है कि अब यहाँ से मार्केट कलप्स हो सकता है। तो उस सेंस के थ्रू आप अपनी रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। आपने यदि निफ्टी में कोई कॉल ऑप्शन बाय किया है या फिर आपने कोई फ्यूचर बाय किया है, तो आपको ये एक तरीके से आइडिया लग जाता है कि आईबी जो है अभी 50 के आसपास है, जहां से मार्केट में एक डिक्रीज देखने को मिल सकता है। तो आईबी बेसिकली गाइस फ्लक्चुएट कैसे होती है, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि आईबी जो है एक वॉलेटिलिटी मेजर है जो कि स्ट्राइक में होने वाली वॉलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करती है, और इट गेट्स इंपैक्टेड बाय द प्लान्ड इवेंट्स। तो जब भी आपने देखा होगा कि कोई बजट आने वाला होता है या फिर किसी इलेक्शंस के रिजल्ट आने वाले होते हैं, तो आईबी सडनली इंक्रीज हो जाती है और उनके आउटकम आने के बाद आईबी सडनली क्रैश हो जाती है। तो ये जो होता है ये विक्स से थोड़ा सा अलग होती है। जैसे कि विक्स होता है वो इंडेक्स में होने वाली वॉलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और अनप्लान्ड जितने भी अनप्लान्ड फैक्टर्स होते हैं वो उससे इंपैक्ट होता है। अनप्लान्ड फैक्टर मींस कोरोना हो गया आपका, लाइक कोई वार काइंड ऑफ सिचुएशन किसी कंट्री के बीच डेवलप हो गई, तो इस प्रकार की कोई इस प्रकार की यदि कोई कंडीशंस मार्केट में अराइज होती है तो विक्स इंक्रीज होता है, बट आईबी इंक्रीज होती है जब कोई प्लान्ड इवेंट होता है। जैसे कि हमने अभी बजट के सेशन में देखा था कि बजट से पहले कॉल की और पुट की दोनों की आईबी काफी इंक्रीज थी, और बजट आने के बाद आईबी क्रैश कर गई। गाइस बेसिकली ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग, तो ये स्लाइड डायरेक्टली आपको बताती है कि आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए या फिर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। तो whether the volatility is going to increase or decrease, there are some points through which after analyzing that points you can come to the point that you have to become option buyer or you have to become an option seller. Trader tend to buy options when the volatility is likely to go up and the sell options when the volatility is go down, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में आपको एक प्रीमियम रिसीव होता है और वही आपकी इनकम है। तो जब भी आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं मेक श्योर कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत कम होनी चाहिए। मार्केट में यदि वॉलेटिलिटी यदि इंक्रीज होगी तो आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि मार्केट यदि किसी भी साइड चला गया, मार्केट यदि डायरेक्शनल हो गया तो डेफिनेटली दैट विल पे यू लॉस।
major events, it is always, advisable to buy the options ahead of any major events. यहाँ काफी बाइंग की स्ट्रेटेजी होती है, जैसे कि स्ट्रेडल बाय करते हैं, कोई बजट होता है, बजट से पहले या फिर कोई इलेक्शंस के रिजल्ट आते हैं उससे पहले काफी जो ऑप्शन ट्रेडर होते हैं कोई स्ट्रेडल बाय करके जाता है. स्ट्रेडल मींस कोई कॉल ऑप्शन भी बाय करता है और पुट ऑप्शन भी बाय करता है. तो यदि कल के सिनेरियो में मार्केट डायरेक्शनल हो जाता है तो एक ऑप्शन से आपको जो लॉस तो होगा नहीं, क्योंकि आपने जो प्रीमियम पे किया हुआ है दैट विल बी योर लिमिटेड लॉस, बट एक ऑप्शन जो आपने बाय किया है उससे आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट यील्ड हो सकता है. आउटलुक ऑफ द मार्केट. तो a decisive view on the market is a very important factor that determines the decision to buy or sell an option. With a high conviction market view, option buying is preferable, but in a defensive view, option selling is a good to adopt. मार्केट में व्यू आपको हाई कन्विक्शन है कि मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, आप ऑप्शन बाइंग करके चलिए. यदि आपको सिचुएशन कुछ डाइसी लगती है कि मार्केट में थोड़ा सा इनडिसाइसिव है, मार्केट ऊपर भी जा सकता है नहीं भी जा सकता है, तो उस केस में आपको ऑप्शन सेलिंग करके या फिर कोई क्रेडिट स्प्रेड काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी आपको मार्केट में बना के चलनी होती है. टाइम लेफ्ट टू एक्सपायरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. जैसा कि मैंने लास्ट स्लाइड में भी आपको बताया कि सिलेक्शन ऑफ कॉल ऑप्शन बाइंग और पुट ऑप्शन बाइंग में कैसे होता है कि यदि टाइम बहुत कम बचा हुआ है तो आपको ऑप्शन बाइंग बिल्कुल इग्नोर करनी चाहिए. यदि टाइम अच्छा खासा बचा हुआ है तो आपको ऑप्शन सेलिंग पे जाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है थीटा इंक्रीज होता हुआ चलता है. गाइस नाउ दिस इज this is the intraday trade setup for the beginners, and you have to just keep eyes on the 3 indicators to become a successful, a good option traders. ये जो 3 चीजें जो मैंने आपको बताई है इसको हम फर्दर रिफाइन कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ अभी आपको इन 3 चीजों के ऊपर वर्क करना है. तो इंट्राडे ट्रेड स्ट्रेटजी में आपको करना क्या है, आपको इंट्राडे में आपको 10 मिनट्स का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है. नॉर्मली लोग 5 मिनट्स का करते हैं, कोई 15 मिनट्स का करते हैं, तो आपको 10 मिनट्स का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है. आपको ओआई पीसीआर को ध्यान रखना है, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में आपको डिस्कस किया था कि व्हेनेवर पीसीआर इज अबव 1, एक से ऊपर का पीसीआर जब भी होता है तो वी कंसीडर द मार्केट सेंटिमेंट एज बुलिश, बट वी नीड सम कंफर्मेशन. हम कुछ भी जब बाइंग करते हैं तो हमको कुछ कंफर्मेशन की आवश्यकता होती है. हम चार्ट पैटर्न्स को भी एनालाइज करते हैं तो हम वेट करते हैं कि लेट द कैंडल क्लोज अबव दिस रेजिस्टेंस. तो whenever PCR ratio is above 1.10, VWAP जो कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता है, इंडिकेटर होता है जो कि आप किसी भी स्टॉक के ऊपर लगा सकते हैं जिसमें कि वॉल्यूम होता है. आप निफ्टी के इंडेक्स के ऊपर इसको नहीं लगा सकते, निफ्टी के फ्यूचर और बैंक निफ्टी के फ्यूचर आप इसके ऊपर आप इसको लगा सकते हो. मतलब जहां वॉल्यूम्स होते हैं, आप वॉल्यूम जहां आते हैं आप वहां उस इंडिकेटर को डिप्लॉय करके चल सकते हैं. तो VWAP आपको एक इंडिकेटर लगाना है और आपको एक RSI यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यानी कि आपको ये एक इंडिकेटर लगाना है. आपको करना यह है कि बाइंग के केस में, कॉल ऑप्शन बाइंग के केस में, व्हेनेवर पीसीआर रेशियो इज अबव 1.10, VWAP प्राइसेस आर अबव VWAP एंड RSI इज अबव 50, देन यू हैव टू गो फॉर ऑप्शन बाइंग. सिमिलरली यदि OIPCR डाउन साइड में 0.90 के नीचे है, प्राइसेस VWAP के नीचे हैं और RSI 50 के नीचे है, तो आप पुट ऑप्शन बाइंग में जा सकते हैं. अगेन आई रिपीट, OIPCR कॉल ऑप्शन बाइंग के केस में आपको टाइम फ्रेम 10 मिनट्स का रखना है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको नहीं रखना है. जैसे जैसे यू विल बिकम प्रोफिशिएंट टुवर्ड्स दिस, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड, इनहेरेंटली अंडरस्टैंड कि आपको इसमें और क्या क्या चेंजेस करना होगा. तो एज अ बिगनर, एज ऑफ नाउ, you just with pure honesty, you just trade these 3 indicators for a month or 2 months. In next webinar, we will further refine this strategy, जहां एक इंडिकेटर भी है जिसको कि डिप्लॉय करके आप इस स्ट्रेटेजी को फर्दर रिफाइन करके चल सकते हैं. तो आपको 10 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम आपको इनिशियली सेलेक्ट नहीं करके चलना है. So guys, this is all this is all in this today's webinar. And guys, this is the performance track record of our derivative calls.
So in last week, we have given 43 calls where we, managed to acquire 79% of accuracy. Here you can see in index option, we gave 33 calls where we, success ratio is 85%. So guys, this is our Telegram channel. You can just scan this barcode to join our Telegram channel. Guys, now we are open for Q&A session. You can ask your query pertaining to this webinar. Please ask. Yes, definitely you can get the recording, but if you have any question, you can ask a question here. So guys, basically this platform is not for any recommendations. If you have any query pertaining to this webinar, any how to conduct option chain analysis, PCR, or anything pertaining to this webinar, you can ask it. Okay, so Mr. Sahil Chauhan, you are asking what should be the risk to reward ratio in the case of option selling. So guys, basically option selling, there is a mental block that you have unlimited loss in option selling. So I would like to say that, whenever you are going to buy option, buy stocks, so there is a one stop loss that you have to put in the system, right? So जब भी आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो वहां भी आपका जो स्टॉप लॉस होता है, जो रिस्क होता है, वो आपका लिमिटेड होता है. So also simultaneously, whenever you are going to sell the options, you can also put the buying order in the system. By doing so, you can hedge or you can protect your losses if market goes higher. यदि आप डायरेक्टली इसकी बात करते हैं कि कितना आपको स्टॉप लॉस लेके चलना है, तो जिस प्रीमियम पे आपने अपना ऑप्शंस को सेल किया है उसका एटलीस्ट 10%, प्रीमियम का एटलीस्ट 10% आपको स्टॉप लॉस ऐसे मेंटेन करना. Okay, so Mr. Ashok Kataria is asking, explain the example of the time decay with example, right? So guys, basically time decay concept, जैसे कि मैंने आपको बताया कि time decay, pertaining to a theta is a option Greek, right? So whenever you buy a call option जब भी आप कोई बाइंग करके चलते हैं तो कॉल ऑप्शन में जो आपको प्रीमियम देना पड़ता है, that consists two things. One is intrinsic value, second is a time value. So the time value which you are paying is nothing but that time value is going to zero by the time till expiration. जो आपका टाइम एक्सपायर होगा जिस डेट पे, उस टाइम तक आपकी जो टाइम वैल्यू है that will definitely get zero. तो टाइम डिके का कंसेप्ट ये है कि आपने लेट से कि कोई 20,200 की 20,200 की, if you buy a call option of 20,200 and if you pay a option premium of 150, if market does not increase above 20,350, क्योंकि that will be your break even point. आपको प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट 20,350 के ऊपर जाएगा, क्योंकि आपने 150 रुपए का प्रीमियम पे किया हुआ है एंड प्रीमियम इज नॉट अ रिटर्नेबल, नॉट अ रिकवरेबल. अब वो प्रीमियम आपको वापस कभी नहीं होगा. 350 के ऊपर जब मार्केट जाएगा तो आपको उसमें प्रॉफिट होगा. यदि मार्केट 350 के ऊपर नहीं जाता है, 350 के नीचे ही रहता है मार्केट, तो उस केस में आपको लॉस होना है. यदि मार्केट 100 पॉइंट से भी इन द मनी हो जाता है, इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी 100 पॉइंट से भी इन द मनी हो जाती है, तो उसमें लेट से यदि टाइम वैल्यू 50 की है तो 50 उसकी जीरो हो जानी है. दिस इज द एग्जांपल. So Ashwani, you are asking about the IB के बारे में आप पूछ रहे हैं. तो basically, look Ashwani, as such there is no extreme boundaries of IBs, right? If you are paying daily attention on IB,
you can find that 35, 40, basically 50 can be considered as an upper range of IB and 20 can be considered lower range of IB. So whenever the IB of any strike price approaches to 50, you can sell that particular strike, and whenever IB of that particular strike approaches to 20, you can buy that strike price. तो ऐसा यहाँ कोई बाउंड्रीज नहीं है, बट हम 20 और 50 से इसकी एक्सट्रीम बाउंड्रीज को डिफाइन कर सकते हैं. आईबी, आपको आईबी पर ट्रेड करना है तो आपको डेली बेसिस पे यू हैव टू पे अटेंशन ऑन अ डेली बेसिस ऑन द आईबी. आपको आईबी पर डेली बेसिस पर अटेंशन पे करनी होगी और आपको खुद से ही बाउंड्री सेलेक्ट करनी होगी कि इस पर्टिकुलर एटीएम स्ट्राइक की यदि बाउंड्री जो है वो 35-40 के आसपास आती है तो हमें एक सेलिंग प्रेशर विटनेस होता है. डाउन साइड में यदि 15 और 18 के आसपास आईबी आती है तो वहां हमको एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलती है. तो मोहिनी, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? इंट्रिंसिक वैल्यू इज द नथिंग बट इट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द ऑप्शंस. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. आप निफ्टी लेट से अभी 20,000 के आसपास चल रही है और आपने 19,900, यानी कि इफ यू बाय अ स्ट्राइक ऑफ 19,900, so what is the intrinsic value? The intrinsic value is 100 rupees because current market price of the Nifty is 20,000 and you buy a call option of 19,900. So in this case, the intrinsic value is 100 rupees. And to buy the call option of 19,900, you pay a premium of 150. So in 150, 100 rupee is an intrinsic value, 50 rupee is a time value. Now is it clear, I think? What is the VWAP? Okay. So Pratap, VWAP is an indicator. This is a volume weighted average price. ये आपको बताता है कि at what level there is a highest volume in the market, right? If you are deploying VWAP on Nifty future, so Nifty future is currently trading at 20,100, for example, and VWAP value is coming 20,120. So it means market has a highest volume at 20,120. आपको मार्केट बताता है कि 20,120 पे ज्यादा ट्रेड्स हुए हैं. तो whenever market crosses that level 20,120, you consider market is bullish, or if market falls below or remains below that level, market could be considered as a bearish market. So guys, Amit, you asking about the open interest and call writing. So open interest, जैसे कि हमने बताया कि open interest is nothing but it says the total number of outstanding contract. तो आप call writing और put writing को कैसे यूज कर सकते हैं? By just looking at the open interest. So if you want to write a call, right? So you would like to pay attention on option chains, and you will find the strike price in call side where there is a highest concentration of the open interest. For example, Nifty is currently 20,000 and you are seeing 20,200 has a highest concentration of open interest. तो उस केस में आपको 20,200 की कॉल को राइट करना पड़ेगा, because there are lots of option sellers saying or thinking that market is not going to move above 20,200. So this is a simple concept of call writing and open interest. Okay, so Krishnakant, you are asking, can you please tell the gamma blast? Okay, so this is theta, gamma, vega, and delta. This is a part of options, and this webinar is the basics of options. So definitely we will cover this option Greek in our upcoming webinar. So in this webinar we are not going to cover the gamma blast. You can start option trading mainly 2,000, 5,000, 10,000. कि आपको option buying में you just have to pay option premium. If the option premium of Nifty is currently trading at 20, then you have to pay a mildly 1,000 rupees, right? 20 into 500. तो जो भी amount निकल के आता है 1,000 के आसपास, तो you can start option buying in 1,000 or 2,000, 5,000 in any amount.
Okay, so I think I have already discussed this point, IB. So guys, basically, as I already told that, as such, there is no extreme boundaries of IB, but we always consider 50 is a overvalued, 20 is a undervalued. But in a low VIX scenario, abhi jo VIX hai, that is currently trading around 10 or 11. So in a low VIX scenario, this is a very tough to IB moving above 30 or 35. So in this scenario, we can say 35, around 35, 38 can be considered as a extreme boundaries, while in downside 15, 18 can be considered as a low boundaries. टेलीग्राम लिंक जो है, आप जो हमने आपको वार कोड दिया था, QR कोड दिया था, आप उसको स्कैन करके भी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं. मैं भी अभी आपको डिस्प्ले कर दूंगा. No, you have to follow, just guys, one thing I would like to say, whenever you are making your view, you don't have to look at the chart of strike price. Always you have to look the chart of Nifty spot or Bank Nifty spot. आपको फ्यूचर के भी चार्ट नहीं देखने, बट यस निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स के ऊपर यू कैन नॉट डिप्लॉय VWAP. तो whenever you are deploying this strategy, PCR, VWAP and RSI, you have to deploy this strategy on Nifty future or Bank Nifty future. So definitely, Ajay, in your case, you have to look RSI for Nifty future, not a particular strike. Okay, so there is no name anonymous attendees. Yes, definitely the question is being repeating again, Gamma Blast. So definitely we will take this concept in our upcoming webinar. As I already said, this is the webinar of basics of option trading. So in this webinar, we are not covering the option Greeks. Yes, this is a very good question for from the point of the view of option buying. How option buying strike price selection? So guys, as I have already said that whenever you are going for option buying, always try to ignore ATM and OTM strikes, because ATM and OTM, both strikes have a highest value of time value, or time value is an amount that will definitely get zero at the expiry date. Time value is nothing, but this is your cost. वो आप यदि if you are option buyer, then make sure you are losing your money by sleeping. आप if there is a 2 days of weekend, Saturday and Sunday, in those days you are losing your money. So always try to select the strike where time value is a very less. और ATM पे time value is a very high, बहुत ज्यादा होती है, तो आप ATM को कभी बाय नहीं करेंगे. Some option trader recommend you to buy a ATM call option or put options because of delta factor. क्योंकि delta जो है ATM call और put options का वो 0.5 होता है, और जब भी prices in the money होता है तो delta drifting की वजह से थोड़ा बहुत movement उस prices में देखने को मिल सकता है. But think about the again scenario. If there is no as such movement in the prices, क्या होगा कि यदि मार्केट में एक tremendous move नहीं आया, so the melt of or erosion of the option premium will be very fast. So ATM and OTM call put option you are not going to buy. Always go in the money. देखिए स्ट्राइक प्राइस तो आप अनिल कुमार अडोनी, स्ट्राइक प्राइस तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि गो विद इन द मनी, नॉट एट द मनी और OTM और आउट ऑफ द मनी. Okay, this is a good question. How to find stop loss in option trading? So guys, basically, as I have said that to become a good option, trader, there is a two backbone of option trading. One, price action analysis. Second, option chain analysis. Right? If you are not good in price action, then you have to put stop loss according to your money management.
कि आपको जैसे कि आपको अपनी रिस्क एपिटेंसी को डिफाइन करना होगा कि पर डे यू आर विलिंगली टू टेक अ 1000 रुपीज ऑफ रिस्क, पर डे यू आर विलिंगली टू टेक अ 500 रुपीज ऑफ रिस्क। आपको मनी मैनेजमेंट के थ्रू आपको अपनी रिस्क एपिटेंसी को डिफाइन करना होगा, बिकॉज you are not good in a price action. If you are good in a price action, then definitely you have to look at the chart of Nifty or Bank Nifty. If there is any decline or rise above or below the support or resistance area which you have set prior to in your mind, then you have to exit your position, right? डेरिवेटिव चार्ट और ऑप्शन चार्ट के व्याप पे आप नहीं ले सकते हो स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के लिए आपको आपका मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना ही करना होगा। इफ यू आर नॉट गुड इन प्राइस एक्शन, इफ यू आर गुड इन प्राइस एक्शन, देन यू कैन पुट योर स्टॉप लॉस अकॉर्डिंग टू निफ्टी और बैंक निफ्टी प्राइस स्ट्रेटजीज। Okay, one second guys. Okay, so this is a very good. He Rajkumar, which one has the higher weightage in OIPCR or volume PCR? So definitely here I would say OIPCR. Open interest PCR का highest weightage होता है, तो आपको if you have to pay a more attention on OIPCR rather than volume PCR. So Sanjeev, जहाँ OI change depicts you a today change in the open interest, कि आज का जो change है, आज कितना ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है, वट एवर अमाउंट ऑफ ओपन इंटरेस्ट इज बीइंग चेंज टुडे, दैट कैन बी सीन एज अ ओआई चेंज फॉर टुडेज। एंड क्यूमुलेटिव ओआई मींस हाउ मच ओआई राइटर्स, हाउ मच कॉल राइटर्स आर हियर और हाउ मच पुट राइटर्स आर हियर। Time frame you can, for intraday you can select 10 minutes if you are beginners in the market, so 10 minutes time frame would be a better for you. If you think you are proficient, then you can go for 5 minutes for scalping or anything. Thank you Yogesh for such good comments. Yeah, definitely IBK's range ko you can also play in equity, but what I have said is you have to pay attention, you have to go the volatility, you have to go the extreme points of the IB. आपको IB को एनालाइज करना है। Initially first 15 days you have to pay 100% attention on the change in the implied volatility. After that you can play the IB. Yes, Sunil Chavra, we have our Telegram channel where we flash our intraday positional and short-term calls. By joining that channel, definitely you will be able to receive our intraday and positional calls. So guys, basically this webinar is for option trading, not for price action. Definitely हम price action के webinar को भी आने वाले time में conduct करेंगे. So wait for that. Intraday का time frame 10 minutes का आप select करके चल सकते हैं. If you are new in the market, and if you have experience, and if you think you are proficient, then you can follow 5 minutes chart or 15 minutes chart. तो जैसा कि मैंने कहा कि whatever strategy I have given to you for intraday, that strategy should be followed with proper honesty, क्योंकि उस strategy में एक alteration है, and that alteration I will give you in our next webinar. Definitely that will be advanced option trading. We will conduct that webinar on advanced option strategies, where we will also discuss some adjustment, how to adjust the strangles, how to trade in the delta drifting strategies and all.
Okay, Anil Roy, you are recommended to join our Telegram channel, right? And I would say that before coming to this option bird, one thing you have to understand that this is a very complex nature of financial instrument, right? SEBI also warned you against the option trading. So basically, the beauty of option trading is you can make money. Your ROI, yani ki return on investment, can be double, triple in just 5,000, 10,000, 20,000. But you should be right in your way. You should be right in your outlook. तो आपको उसके लिए यू हैव टू डिफाइन योर मनी मैनेजमेंट, यू हैव टू डिफाइन योर रिस्क कैपिटेंसी कि पर डे यदि आप इफ यू आर स्टार्टिंग योर ट्रेडिंग बाय 10,000 rupees, then you have to define your risk capacity. For example, in a one day you are willingly to take a 500 rupees of loss, you are willingly to take a 200 rupees your loss, and that happens in a single trade, one trade and two trade, then just shut down your system and go. देखिए, as such we cannot predict a sudden spike in the prices, but yes, by tracking IV you can predict sudden spike in the prices, because if there is a sudden spike in the prices, option prices, definitely IV start fluctuating. IV में एक आपको जो है वो इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है. तो गाइस ऐसा होता क्यों है? बेसिकली IB में जो इंक्रीमेंट होता है, क्योंकि IB जो है, IB रिप्रेजेंट it is a, we can understand IB is nothing but it's a fear index. आपके मार्केट में होने वाले जो फियर है उसको रिप्रेजेंट करता है ये. तो ऑप्शन प्राइसेस में यदि कोई सडन स्पाइक आने वाला होता है तो आप जस्ट इवेल्युएट दैट बाय जस्ट कीपिंग आईज ऑन द implied volatility of that particular strike. No, as of now there is no any charge for Telegram. Free of cost you can join the Telegram. Again, for some time, I am sharing my screen and showing the QR code. So guys, आप इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. एंड हियर इज आल्सो अ लिंक. आप इस लिंक पे विजिट करके भी इसको टेलीग्राम चैनल को हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं. So I am seeing there is no as such query. So guys, thank you very much for attending this webinar, and definitely we will keep conducting such informative or insightful webinars in days to come. And our next webinar will be on advanced option strategy. Stay tuned and do not forget to join us. We will definitely give you a date कि किस डेट को हम वो ऑप्शन वेबिनार कंडक्ट करने जा रहे हैं. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर attending this webinar.